یہ سال 1812 اور مئی کا مہینہ تھا۔ شمالی عرب کے ایک صحرا میں تپتے سورج تلے سادہ عربی لباس پہنے ایک مسافر آگے بڑھ رہا تھا۔ صحرا میں رہنے والے بدوؤں نے جب دور سے اس مسافر کو آتے دیکھا تو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مسافر نے ان بدوؤں سے کہا، میرا نام برک ہارٹ ہے اور میں ریت کے اس صحرا میں صدیوں پرانا گمشدہ شہر تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے اس سے کہا، اس شہر کو تو دنیا والے محض ایک افسانہ مانتے ہیں، لیکن ہم چرواہے جانتے ہیں کہ یہ کہاں موجود ہے۔ برک ہارٹ کو کچھ چرواہوں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ گرم صحرا میں بہت دور سنسان پتھروں کی وادی میں یہ لوگ چلتے رہے اور سورج ڈھلنے سے قبل وہ ایک پر اسرار وادی کے قریب پہنچ گئے، جہاں پتھر سے تراشی گئی بڑی بڑی بلند عمارتیں موجود تھیں۔ لیکن وادی میں داخل ہونے سے قبل ان چرواہوں نے برک ہارٹ سے کہا، یہاں داخل ہونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، یہاں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو قربانی کی نیت کرے۔ برک ہارٹ نے کہا، میں ہارون نبی کی قبر پر قربانی دینا چاہتا ہوں۔ چرواہوں نے اسے اندر جانے دیا۔ برک ہارٹ اندر جاتا گیا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ تنگ اور سایہ دار وادیوں اور پتھروں کے دراڑوں کے بیچ چلتا رہا اور ہر قدم کے ساتھ اس کے ارد گرد کی چٹانیں اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا یہ انسانوں کا نہیں، دیو اور جنات کا شہر ہو۔ برک ہارٹ جب شہر کے اختتام پر پہنچا تو اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہماری یہ زمین نہایت ہی خوبصورت ہے اور انسان زمانے قدیم سے اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے عمدہ سے عمدہ جگہ بنا سکے۔ جہاں آج ہم 21ویں صدی میں نہایت ہی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، وہیں زمانہ قدیم میں کچھ مقامات کو اس طرح تراشا گیا تھا کہ وہ آج ہماری 21ویں صدی کی سائنس کے لیے بھی مسٹری بنی ہوئی ہے، جبکہ ان شہروں کا اسٹرکچر دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ انہی قدیم شہروں میں ایک شہر پیٹرا ہے، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین شہر اور آبادی سے بھرا مقام تھا، لیکن آج یہ شہر ایک خاموش قبرستان کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ ڈھلتے وقت کی بے رحم لہروں میں آ کر اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پتھر سے بنا یہ گمشدہ شہر جو وقت کے پردے میں دفن ہو گیا، مگر اس کی خاموش دیواریں آج بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ شہر سکندر اعظم کے خزانے کی حفاظت کے لیے تراشا گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شہر جنات کی تعمیر ہے، جبکہ کچھ مانتے ہیں کہ یہاں نبطی بادشاہ اپنی دعاؤں کا جواب لینے آتے تھے اور یہاں موجود عمارتوں کو انسان سے پہلے دنیا میں بسنے والی مخلوقات نے بنایا تھا۔ اس شہر کا ہر قدم ایک سوال ہے، ہر دیوار ایک بھولا ہوا قصہ ہے اور اپنے اندر ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں جو شاید کبھی کھل نہیں سکتے۔ پیٹرا کا یہ قدیم اور تاریخی شہر اردن کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ شہر محافظہ مان کے علاقے میں پایا جاتا ہے اور اس کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام اردن کے دارالحکومت عمان سے تقریباً 240 کلومیٹر جنوب کی طرف ہے۔ مقامی روایتوں کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گزرے تھے، اور اسی مقام پر بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تھا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وادی کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ پیٹرا پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک تنگ راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے یہ شہر انسانی نظروں سے چھپا رہا۔ آج بھی جب لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں تو ان پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسے وہ وقت میں پیچھے جا رہے ہوں۔ پیٹرا میں بنی عجیب و غریب بلند جائنٹ عمارتیں اسے دوسری تاریخی شہروں سے مختلف اور پر اسرار بنا دیتی ہیں۔ پیٹرا کا سب سے مشہور اور دیو قامت عمارت الخزانہ ہے، جسے دی ٹریزری کہتے ہیں۔ یہ عمارت 130 فٹ اونچی ہے
और मुकम्मल तौर पर चट्टान को तराश कर बनाया गया है। यहाँ के मकामी बद्दुओं के लोक कहानियों के मुताबिक अल खजान के अंदर मिस्र के फिरौनियों ने अपने खजाने छुपाए थे, जबकि दर हकीकत ये इमारत किसी बादशाह और उसकी 2 मलका का मकबरा है। पेट्रा में मुर्दों के लिए बड़े बड़े मोहल्लात और मकबरे बनाए गए हैं। पहाड़ों के अंदर तराशे गए ये मकबरे बादशाहों, शहजादों और अमीरों के लिए थे। इनकी खिड़कियां, दरवाजे, महराबें सब एक मुकम्मल महल की तरह है। यहाँ नीचे की मंजिल में मुर्दों को दफनाया जाता था। इसी तरह रास्ते में पत्थर के अजीब शक्ल के घर बने हुए नजर आते हैं, जिन्हें जिन्नात का घर कहा जाता है। दरअसल यहाँ के मकामी बद्दुओं का कहना था कि उन घरों से रात के वक्त बुलंद और दहाड़ने वाली आवाज़ पैदा होती थी, और इस आवाज़ के बिना पर उन बद्दुओं का मानना था कि पेट्रा में आज भी जिन्नात रहते हैं। इस तरह उन्होंने इस इलाके को जिन्नों का घर कहना शुरू कर दिया, और आज भी ये इसी नाम से मशहूर है। पेट्रा का थिएटर भी एक हैरत अंगेज इमारत है, जहां चट्टान को काटकर 3000 से ज़्यादा अफराद के बैठने की जगह बनाई गई है। पेट्रा की सबसे बड़ी इमारत अद-दायर है, जो कि एक इबादत गाह है। ये खानकाह पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, और वहां पहुंचने के लिए 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हजारों साल कबल जब ना कोई जदीद मशीन थी, ना कोई सहूलत, उस वक्त सिर्फ पत्थरों को हाथ से काट कर पहाड़ के बीच एक ऐसा अजीम शहर तामीर कर देना कोई मामूली काम नहीं हो सकता। इसलिए लोगों का मानना है कि इस तरह की तामीर का इल्म किसी कदीम खोई हुई कौम के पास था, जिन्होंने अपनी गैर मामूली कुव्वतों, तिलिस्मात या शायद आसमानी ताकत की मदद से पेट्रा को बनाया होगा। अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो इसमें एक ऐसी कौम का जिक्र हुआ है जो पहाड़ों को काट कर अपने लिए घर बनाया करते थे। तारीख में इस कौम को कौम समूद के नाम से याद किया जाता है। कौम समूद का इलाका दरअसल मौजूदा सऊदी अरब के मदाइन में मौजूद था, जहां आज भी पहाड़ों में तराशे गए घरों के आसार मौजूद हैं। लिहाजा कुछ मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि पेट्रा वही जगह हो सकती है जहां कौम समूद ने कुछ वक्त गुजारा होगा, या उनके बाद आने वाली अक़वाम ने उनकी तर्ज तामीर को अपनाया होगा और उन्होंने यहाँ तामीरी काम किया। मवर्रखीन इस कौम को नबाती कहते हैं। नबाती एक तालीम याफ्ता कौम थी, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका अपना लिखा हुआ कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अरब हिस्टोरियंस के मुताबिक नाबती हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये लोग शुमाली अरब के इलाके में आबाद हुए। उस दौर में दूसरी बड़ी कौमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फल फूल रही थीं, लेकिन तामीरात के फ़न में नबाती से उनका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि इस कौम ने अपने आबाओ अजदाद यानी कौम समूद से पत्थर को काट कर इमारतें बनाना सीखा था। अजीब बात यह है कि नाबती लोगों ने अपनी एक अलग तहरीरी ज़बान इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी अक्सर तहरीरें आज भी मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ी जा सकती हैं। उन्होंने उन तहरीरों को लिखा ही कुछ इस तरह है गोया उनमें कोई राज छुपा हो। उनकी सल्तनत सैकड़ों साल तक कायम रही, जो आज के उर्दून से लेकर अरब के जुनूब में यमन तक फैली हुई थी। अलबत्ता उनका मरकज़ी शहर पेट्रा ही था। शुरू में ये लोग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते दीन तौहीद पर कारबंद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरी कौमों के ज़ेर असर आने की वजह से उनमें शिर्क का गलबा हो गया। पेट्रा से मिलने वाले मुजस्समों से मालूम होता है कि ये लोग भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। पेट्रा की इबादत गाहों से कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनके ना चेहरे हैं, ना वाज़ेह जिस्मानी खद्दो-खाल, और ज़्यादातर बुत ब्लॉक्स की शक्ल में बने हैं। गोया देखने में ये किसी रोबोट की तरह मालूम होती हैं। 300 कबल अज़ मसीह में जब सिकंदर आज़म दुनिया को फतह करने निकला तो नबाती उस वक्त अपने फ़न और महारत में उरूज पर थे, और ये गुमान भी किया जाता है कि शायद सिकंदर आज़म का गुज़र पेट्रा के इलाकों से भी हुआ था। लेकिन 105 कबल अज़ मसीह में आखिरी नबाती बादशाह की मौत के बाद उनकी इस अजीम सल्तनत का ज़वाल हो गया, और पेट्रा का ये शहर भी तारीख के अंधेरे में कहीं गुम हो गया।
कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि पेट्रा शहर की इमारतें ख़ास एंगल्स पर इस तरह बनाई गई हैं कि वो मखसूस दिनों पर सूरज या सितारों की रोशनी से मुनव्वर होती हैं। गोया इस इमारतों को बनाने वाले एस्ट्रोलॉजी के किसी सीक्रेट इल्म से बखूबी वाकिफ़ थे। कदीम अरबी रिवायतें ये भी बताती हैं कि असहाब कहफ ने इसी शहर में आकर पनाह ली थी और उनके गार भी यही मौजूद हैं। जब असहाब कहफ को पेट्रा के किसी गार के अंदर अल्लाह ने हमेशा की नींद दे दी तो उस वक्त के नेक बादशाह ने यहाँ उनकी कब्र बनवाकर इस पर नाम रकम करवा दिया। इसलिए इस शहर को अरब लोग रकीम कहा करते थे, क्योंकि यहाँ असहाब कहफ का नाम रकम किया गया था। बाज़ मुवर्रिखीन ने यह बयान किया है कि पेट्रा शहर में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलती और अल्लाह ही बेहतर जानता है। पेट्रा शहर के बाशिंदों का अचानक तारीख के मंजरनामे से गायब हो जाना एक अजीब व पुरस्रार सान्या है। आखिर पेट्रा में ऐसा क्या हुआ था? यहाँ की तहजीब की तबाही की वजह कोई आसमानी अजाब था, बाहरी दुश्मन का हमला या कुदरती वसाइल का ख़त्म हो जाना? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। पेट्रा आखिर किन लोगों की तामीर थी? नबाती कौम, समूद या जिन्नात, या इसे इंसान से कबल किसी दूसरी मखलूक ने बनाया था? आज भी जब सयाह पेट्रा के सुर्ख चट्टानों के बीच इन गुमशुदा गलियों में कदम रखते हैं तो उन्हें यहाँ अजीब सी पुरअसरारियत और खौफ महसूस होती है। जितना हम पेट्रा के मुताल्लिक जानने की कोशिश करते हैं, ये शहर हमें उतना ही उलझा देता है। इसके बावजूद यहाँ की हर खामोश दीवारें एक कहानी सुनाने को बेताब नज़र आती है।